Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start initial value theorem in Laplace transform. If f of t and derivative of function like f prime of t are Laplace transformable, Laplace transform of f of t which is equal to f bar of s is Laplace transform of a function f of t, then the behavior of the function in the neighborhood of t is equal to 0 correspond to the behavior of the derivative of the function like s into f bar of s in the neighborhood of s equal to infinity. Mathematically, limit t approaches to 0, f of t is equal to limit s approaches to infinity s into f bar of s. Initial value theorem means f of t and derivative of function are Laplace transformable, and Laplace transform of f of t which is equal to f bar of s, and Laplace transform of first derivative of function which is equal to s into f bar of s minus f prime of f minus f of 0. Mathematically, limit t approaches to 0 f of t which is equal to limit s approaches to infinity s into f bar of s. By definition, Laplace transform of f of t which is equal to 0 goes to infinity e raised to power minus st f of t dt. Put f of t which is equal to f prime of t like find the Laplace transform of first derivative of the function. Laplace transform of f bar of t like f prime of t means कि df by dt first derivative of the function 0 goes to infinity e raised to power minus st f prime of t dt. F prime of t is e raised to power minus st first function, f prime of t second function like first function. Integral of second function, integral and derivative are cancelled e raised to power minus st f of t. Limits of integration 0 goes to infinity minus whole integral derivative of e raised to power minus st into again integral of this dt. The answer is Laplace transform of f prime of t which is equal to s into f bar of s minus f of 0. Now 0 goes to infinity e raised to power minus st f prime of t dt equal to s into f bar of s minus f of 0. Limit, apply limit as s approaches to infinity. Limit s approaches to infinity 0 goes to infinity e raised to power minus st derivative of the function like df of t divided by dt. So in the f prime of t dt which is equal to limit s approaches to infinity s into f bar of s minus f of 0. अब आपके पास डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस हैं. आपके पास न्यूटन्स के अकॉर्डिंग डॉट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. आई थिंक सो एफ प्राइम ऑफ टी या आपके पास लिबनिट्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव की नोटेशन है. एफ प्राइम ऑफ टी मीन्स के फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डबल प्राइम ऑफ टी मीन्स के सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी s इंटू एफ पावर ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0. s आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट s इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, सो s इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, सो लिमिट s अप्रोचेज टू 0 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस s इंटू t f प्राइम ऑफ t dt विच इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस s t f प्राइम ऑफ t dt. अब आपके पास क्या आता है? लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी विच इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर s आपके पास अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी को. जब आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए तो आपके पास किसको अप्रोच करता है? 0 को अप्रोच करता है. e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी है, आप इसको लिखेंगे लाइक e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी. तो आप 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर दिस, तो आपके पास e रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी लाइक 0. तो आपके पास 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 अप्रोच कर जाएगा. लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी s इंटू एफ पावर ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0 ऑलवेज इक्वल टू 0. लिमिट इक्वल टू 0. लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी s इंटू एफ पावर ऑफ s विच इज इक्वल टू f ऑफ 0. तो आपके पास क्या आ जाता है? आल्सो लिमिट t अप्रोचेज टू 0 f ऑफ t विच इज इक्वल टू f ऑफ 0. अब आपके पास यहाँ पर दोनों की जो राइट हैंड साइड है लाइक लिमिट t अप्रोचेज टू 0 f ऑफ t विच इज इक्वल टू f ऑफ 0 फ्रॉम इक्वेशन a, और ये आपके पास इक्वेशन ए और ये आपके पास बी के. लिमिट t अप्रोचेज टू 0 f ऑफ t विच इज इक्वल टू f ऑफ 0. From equation and b, it is proved that limit t approaches to 0 f of t which is equal to limit
एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ बार ऑफ एस। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन ए और इक्वेशन लाइक टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। लाइक टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ बार विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। फ्रॉम ए एंड बी आपके पास क्या आ जाते हैं कि लिमिट t approaches to 0 f of t which is equal to limit s approaches to infinity s into f power of s। बेसिकली आपके पास जो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपके पास है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ओपन करते हैं तो आपके पास बोथ साइड पे आप लिमिट को अप्रोच करवाते हैं। लिमिट को अप्रोच करवाते हैं तो ये आपके पास ऐसे अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आपके पास किसके इक्वल, ये डायरेक्टली आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है अप्रोच कर जाएगी जीरो को। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऐसे अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ पावर ऑफ एस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो आपके पास बाई डेफिनेशन लिमिट टी अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम ए एंड बी we can prove that limit t approaches to 0 f of t which is equal to limit s approaches to 0 s into f bar of s। नेक्स्ट है आपके पास वेरीफाई द इनिशियल वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। अब आपके पास यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू साइन ऑफ टी प्लस काज ऑफ टी। सबसे पहले आपके पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन की वो आपके पास क्या होती है, Laplace transform of f of t which is equal to f of s which is equal to 0 goes to infinity e raised to power minus st f of t dt। तो आपके पास Laplace transform को आप डिनोट कर सकते हैं f power of s which is equal to Laplace transform of 1 plus e raised to power minus t sin of t plus cos of t। 1 के ऊपर सेपरेटली Laplace अप्लाई करेंगे और इस होल फंक्शन के ऊपर सेपरेटली। अब यहाँ पर Laplace transform of 1 की किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई s। ये आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और आप इसको दोबारा से भी फाइंड कर सकते हैं। Laplace transform ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एस। और अगर आपके पास टी फंक्शन होगा तो पावर ऑफ टी में लाइक तो उस केस में आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर एन प्लस 1। और कांस्टेंट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एस, लाइक 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी साइन ऑफ टी प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस ऑफ टी। अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ गया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इस फंक्शन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। कास की लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आपके पास ई रेज टू पावर माइनस टी साइन ऑफ टी है तो आपके पास यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ई रेज टू पावर माइनस टी है तो आपके पास यहाँ पर इसकी एस को आप रिप्लेस कर देंगे एस प्लस 1 के साथ, और यहाँ पर आपके पास ई रेज टू पावर माइनस टी है तो एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। यहाँ पर a डिवाइडेड बाय है। वैसे आपके पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ टी है वो आपके पास a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। a आपके पास यहाँ पर क्या है 1। सेम आपके पास कास ऑफ टी के केस में a आपके पास क्या है 1, तो कास की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है ये आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी साइन ऑफ टी टी टी। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है साइन ऑफ टी डी टी 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर, यहाँ पर अगर 80 होता तो फिर आपके पास यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस टी है साइन ऑफ टी, तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आप प्रॉपर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और आपके पास काज ऑफ टी के केस में क्या एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो एफ पावर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 बाय एस प्लस 2 प्लस एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट अप्रोच करवाएंगे एस अप्रोचेज टू एफ बार ऑफ एस, लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ बार ऑफ एस, इस लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस डिवाइडेड बाय एस प्लस एस इंटू एस को आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एस एस आ जाएगा, एस एस डिवाइडेड बाई एस है तो 1 आ जाएगा, और एस इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास 1 लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस स्क्वायर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 एस है तो एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई एस स्क्वायर, और यहाँ से एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ जाता है, लिमिट एस
approaches to infinity s into f bar of s which is equal to 1 plus limit s approaches to infinity 1 plus 2 divided by s square divided by 1 plus 1 over s का होल स्क्वायर प्लस 1 over s स्क्वायर। तो s को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन था, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी डी टी। इसमें डायरेक्ट लिमिट फंक्शन को अप्रोच करेंगे 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 0 का ई रेज टू पावर 0 1 और साइन ऑफ 0 0 कॉज ऑफ 0 1, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1। तो लिमिट एफ ऑफ टी लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ पावर ऑफ एस। तो आपके पास क्या है कि ये प्रूव हो रहा है कि आपके पास ये क्या है इक्वल आ रहा है। आपके पास एस के अकॉर्डिंग भी आंसर 2 आया और आपके पास टी के डायरेक्टली फंक्शन को टी अप्रोच करेंगे 0, तो तब का आपके पास क्या आंसर आ रहा है और ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है। सॉरी यस, यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास अगर होता है लिमिट एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर ए टी, तो आपके पास आता है एस माइनस ए एफ ऑफ टी। यहाँ पर इसका प्रॉपर प्रूव है। और यहाँ पर आपके पास अगर फंक्शन गिवन है, ये तो लिनियरिटी बाय ई रेज टू पावर ए टी देन ट्रांसफॉर्म एस बाय एस माइनस ए। ओके, आपके पास ई रेज टू पावर ए टी और ए आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। हमारे वाले केस में ए आपके पास अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लाइक एफ ऑफ एस माइनस ए है, तो s जो है वो s माइनस ए के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर ए टी है तो हमारे पास a जो है वो नेगेटिव था। इसको चेक करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास फंक्शन में हमारे पास f ऑफ s माइनस ए हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। गुड, तो यहाँ पर s प्लस 1 इसलिए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो फिर s माइनस ए आता। फॉर एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के केस में इस डेफिनेशन को माइंड में रखना है। लिमिट टी अप्रोचेज डायरेक्ट फंक्शन को अप्रोच करेंगे 0, तब क्या आंसर आता है, और आपके पास एस उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके एस को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी, तब क्या आंसर आता है। और लास्ट में आपके पास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद एफ बार ऑफ एस होता है, एस अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, तो साथ एस को भी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की आपने, ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस ऑफ टी के अकॉर्डिंग भी और ई रेज टू पावर माइनस टी साइन ऑफ टी के अकॉर्डिंग भी।